کیا کیا کرنی ہے؟ ہیماٹالوجی انالائزر ہے، اس میں اچھے سے بلڈ ہونا ہے، HB وغیرہ ہونی ہے. ٹھیک 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 اس کے بعد اس میں کیمسٹری نے ٹیسٹ بنانا، ٹھیک ہے. وغیرہ نے ٹیسٹ بھیجا، صحیح صحیح مائکروسکوپ صحیح مائکروسکوپ مطلب یورین وغیرہ سے اس نے ٹیسٹ کرنا. صحیح صحیح. یورین مائکروسکوپی ہونی ہے. یہ کہوں کہ بلڈنگ بن گئی ہے، چیزیں بن گئی ہیں، اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ اس کا جو استعمال ہے وہ اچھے طریقے سے کریں. پچھلے 15-20 سال سے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا اجر نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، نہ یہ حکومت دے سکتی ہے آپ کو. اس کا اجر آپ کو نیلی چھت والا دے. یا جو باقی جو آپ فلائی کام کر رہے ہیں، میں اس پہ بھی آپ کو سراہتی ہوں. اور آپ کی ایمبولینس سروسز، آپ کی لوگوں کی خدمت، آپ کے لوگوں کو وظائف دینا، اسکولوں کالجوں کو پروموٹ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا. السلام علیکم جی، کیا حال ہے سارے ہیں؟ امید ہے سارے ٹھیک ہو. سو میں حسن اور دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل چیکس وائی ٹی وی آفیشیل. ماشاء اللہ جی جناب دیکھنے سسٹم سے موجود ہیں جی الفلاح سوسائٹی اسر. ٹھیک ہے جناب، اج دیکھنے سو MCH سینٹر. ٹھیک ہے، سو یہ جناب نویں بلڈنگ بنائی ہے، زچہ بچہ ایمرجنسی سروس اسی ہے. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے سے سنا جی پتا سی ہے. کافی ساری تعداد عوام موجود ہے. دیکھ سکتے ہو بہت دیکھ سکتے ہو موٹر سائیکل اور ایمبولینس وغیرہ چلتی ہیں، تقریباً 4-5 ایمبولینسیں انہیں اور کافی تعداد جناب عوام موجود ہے. پتا سی ہے اور مہمان خصوصی نے قاسم جیت صاحب، نعیم رفیال صاحب، نبیلہ ایوب صاحب، اس علاوہ کافی سارے جڑے جڑے دساں ان شاء اللہ. تو باقی جلنے اندر ٹھیک ہے چیک کرانے ہیں جناب. اس کی اوپننگ کی جی ہونی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جڑے بھن بھرا جی نئے ہو چینل سبسکرائب کری کرو. شروع کرنے آج نا ولاگ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کیا نام سونا؟ مودنیس. اچھا کیا کچھ کری رہے سمجھاؤ تھوڑا سا. بلڈ ٹیسٹ کرنے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کرنے ہو؟ صحیح صحیح صحیح. سر مشینوں بارے سے دسو نا کیا کیا کرنی ہے؟ ہیماٹالوجی انالائزر ہے، اس میں اچھے سے بلڈ ہونا ہے، HB وغیرہ ہونی ہے. ٹھیک 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 اس کے بعد اس میں کیمسٹری نے ٹیسٹ بنانا. ٹھیک ہے. وغیرہ نے ٹیسٹ بھیجا. صحیح صحیح مائکروسکوپ صحیح مطلب یورین وغیرہ سے اس نے ٹیسٹ کرنا. صحیح صحیح. یورین مائکروسکوپی ہونی ہے. ادھر کیا ہے؟ یہ شیک ہونا ہے، اس نے بلڈ کلاٹ نہیں ہونے دینا، اس نیچے سے بلڈ سے شیک کرنا ہے. صحیح 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 بالکل جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم سیر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی؟ ٹھیک ہو خیریت ہے. زبردست زبردست ماشاء اللہ جناب. تو پچھانے نہیں ہونا تو اور سناؤ. ڈیوٹی اللہ بالکل صحت بھی ٹھیک ہے. کیا ڈیوٹی ہے تو نہیں؟ بات یہ ہے سیکشن ڈیوٹی ہے ایک بندہ اچھا ہے تو پرچی سے چلے. نکلا. اچھا اس چک سواری ہٹا ایک چنگا اسپتال اوپن ہے، اس نے بارش کیا بنا چاہنے ہو؟ ماشاء اللہ جی الفلاح سوسائٹی بہت اچھا ادارہ ہے. عوام کی خدمت کرنے، راشن دینے، بہت زیادہ خدمت کرنے. تو ماشاء اللہ زچہ بچہ سینٹر کھلا جی 24 گھنٹے ایمرجنسی جو مرضی ہو ہے ان شاء اللہ 24 گھنٹے سروس. ایمبولینساں بھی ہیں. کتنی ایمبولینس رکھی ہیں نے؟ تقریباً 4 علاج وغیرہ اسی غریب بندے سے فری ہے؟ غریب بندے آتے ہیں ان شاء اللہ فری ہے. جڑے اس کو جڑے بہتر نام آتا ہے تقریباً پرچی وغیرہ. ماشاء اللہ صحیح ہے صحیح ہے. گڈ ہے. خصوصی ڈاکٹر فاروق نور DG ہیلتھ، ڈاکٹر فدا DHO، ذوالفقار صاحب چیئرمین الفلاح سوسائٹی، محمد ایوب صدر الفلاح سوسائٹی UK،
اور عبدالقیوم صدر الفلاح ایسر، میڈیا ارکان اور معزز علاقے کے لوگوں، آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں اس تقریب میں آیا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ایسی تقریب اور ہوں جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ حکومت کے مسائل محدود ہوتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک ٹیم کی طرح ہم چلیں گے تو لوکل کمیونٹی کا بھی فائدہ ہوگا، اور جو حکومت ہے اس کا بھی احساس ہوگا کہ جی وہ جتنی مدد کر سکتی ہے کرے گی، لیکن یہ کہ آؤٹ پٹ جو ہے نا اس کے لحاظ سے وہ میکسیمم ہمیں نتائج ملیں گے۔ جس لوگوں نے اس محفل کے لیے، اس بلڈنگ کے لیے عطیات دیے ہیں اور اس کے لیے ہے، اس کا بھی شکریہ کہ، اور میں چاہوں گا کہ ایسے اور پروجیکٹس ہوں، الفلاح سوسائٹی کی طرح اور سوسائٹیز آئیں جو کہ پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کریں اور لوکل کمیونٹی کے لحاظ سے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ ٹائم مختصر ہے تو صرف میں یہ کہوں گا کہ بلڈنگ بن گئی ہے، چیزیں بن گئی ہیں، اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ اس کا جو استعمال ہے وہ اچھے طریقے سے کریں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں، جو ادھر سٹاف ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے آیا ہے ان سے تعاون کریں۔ ظاہر ہے کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کی ساتھ ان کے ساتھ چلیں تاکہ یہ کہ یہ لوگ جو ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ نقائص ہوں گے، تو آپ لوگوں سے التماس یہی ہے کہ ادھر ڈی ایچ او صاحب ہیں، ڈی جی ہیلتھ ہیں، ہمارا سیکٹری ہیلتھ کا آفس ہے، کہیں آپ کو نچلے لیول سے چین آف کمانڈ میں کہیں آپ کی وہ جو مسائل ہیں حل نہیں ہوتے، تو ہم لوگ اویلیبل ہیں، اسی کام کے لیے اویلیبل ہیں، ہمارے موبائل نمبر بھی مل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے کہیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ کائنڈلی ہم تک اپروچ کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ کے جو ابھی پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، جیسا گائنیکالوجسٹ ہے، اب ہر چیز کا ایک نظریہ ہے۔ اگر گائنیکالوجسٹ ہے تو ظاہر ہے کہ جب تک پراپر اکوپمنٹ، اینسٹیٹس، ساتھ میں چائلڈ کا سپورٹ کا او ٹی، وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ شاید اتنی مؤثر نہ ہوں۔ بہرحال یہ کہ ایم سی ایچ پروگرام ابھی وہ بن رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہم گنجائش کر سکتے ہیں۔ جہاں تک وہ چھوٹا ہے، وہ ایک دو سٹاف کی انہوں نے بات کی ہے، ڈی جی ہیلتھ اور ڈی ایچ او مل کے وی ول ٹرائی کہ ہم اس کے نہ کچھ چپ ان کر دیں، لیکن بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ چیز بن گئی ہے، اس کا اچھا استعمال ہونا چاہیے، اور ایسی ایکٹیویٹیز اور ہونی چاہیے۔ الفلاح سوسائٹی ہیلتھ کے علاوہ بھی باقی کام کر رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمت نہیں پکڑ رہے، وہ الفلاح سوسائٹی کو دیکھیں کہ جی انہوں نے کام شروع کیا اور نتیجے کے طور پہ سامنے ایک بلڈنگ تیار کھڑی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام مہمان خصوصی جناب وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، قابل صدر احترام میرے چھوٹے بھائی قاسم مجید صاحب وزیر حکومت، سیکٹری ہیلتھ، ڈی جی ہیلتھ، ڈی ایچ او صاحب، ایم ایس صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین علاقہ، صدر الفلاح سوسائٹی سر عبدالقیوم صاحب، صدر الفلاح سوسائٹی یوکے چودھری ایوب صاحب، اور میرے لیے بھائیوں جیسے بھائی چیئرمین الفلاح سوسائٹی جناب متیالوی صاحب، اور آج کی محفل کے صدر جناب چودھری محبوب صاحب، پریس اور الیکٹرانک کے نمائندگان، اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے معززین علاقہ، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیش شاید زوال نہ ہو، اور یہ دعا
मेरी अल्फलाह सोसाइटी के उन ज़िम्मेदारान के लिए, उन डोनर्स के लिए, उन वर्कर्स के लिए, उन मुंतज़मीन के लिए कि अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। आप खिदमत खलक के जज्बे से सरशार होकर निकले हैं। 24 साल आपने इस जदोजहद में गुजारे हैं, जिसका फल आपका आवाम के अंदर नज़र आ रहा है। और आज का ये जमे गफ़ीर इस बात की गवाही करता है कि लोग आपकी कारकर्दगी से भी मुतमईन हैं और आपकी खिदमत को सराहते भी हैं, जिनमें एक मैं भी शामिल हूँ। मेरे फादर इन लॉ की भी आपकी सोसाइटी के लिए उन्होंने भी बहुत काम किया और आज उनकी डेथ के बाद मैं पहली बार किसी प्रोग्राम में शामिल हो रही हूँ। मेरे लिए ये यहाँ एक नाकाबिले बर्दाश्त जज्बात हैं। वहाँ मुझे ये खुशी भी है कि मैं भी उस सोसाइटी के उन लोगों में शामिल हूँ। मुतअल्लिक़ साहब ने कहा कि मेरे मैडम के साथ 2 रिश्ते हैं, तो मेरे ख्याल में यही वो रिश्ता है जो मजबूत तरीन रिश्ता है। मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। आपके इस मुतालबे को पजीराई बख्शते हुए मैं सेक्रेटरी हेल्थ साहब से भी मेरी डिस्कशन हुई कि गो के पॉसिबल नहीं है कि गायनाकोलॉजिस्ट के आपके इस मुतालबे को पजीराई दी जाए, क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट के साथ एनेस्थेसिस्ट का होना ज़रूरी है और एनेस्थेसिस्ट के साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि चीज़ों को अगर हल की तरफ ले जाना चाहा जाए, अगर उसमें एफर्ट कर ली जाए, गायनाकोलॉजिस्ट इस इंस्टीट्यूशन को देने की भरपूर सिफारिश करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ सिज़ेरियन करें, ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को यहाँ पे वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। उसके लिए हमारा THQ हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल जो है मौजूद है। हमारी पहली अव्वलीन जो तरजीह है वो सेहत है, और सेहत के मामले में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ख़वातीन की सेहत है। और ख़वातीन की सेहत के में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जच्चा बच्चा के वक्त, लेबर के वक्त उनकी ख़वातीन की प्रॉपर निगहदाश्त। अगर गायनाकोलॉजिस्ट यहाँ मौजूद होंगी तो हमारी जो ख़वातीन दूर दराज से आती होंगी, कम अज़ कम किसी में खून की कमी है, किसी में किसी और चीज़ की कोई अगर रेफ़र करने की बात है तो उन्हें बर वक्त इस बात का इदराक हो जाएगा और वो प्रॉपर तरीके से किसी हॉस्पिटल में जा सकेंगे। और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। इसलिए मैं वज़ीर सेहत से, DG हेल्थ से और चौधरी कासिम मजीद से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके इस मुतालबे को पजीराई बख्शें, और जहाँ तक बाकी जो है वो आपके मुतालबात हैं या जो बाकी जो आप फलाई काम कर रहे हैं, मैं उस पर भी आपको सराहती हूँ। और आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज, आपकी लोगों की खिदमत, आपके लोगों को वज़ाइफ देना, स्कूलों कॉलेजों को प्रमोट करना, गरीबों की मदद करना, इसके लिए जहाँ चूँकि रियासत अकेली ये फरीज़ा सर अंजाम नहीं दे सकती, हम अपने जवाबदेह हैं। और जब से हम गवर्नमेंट में आए हैं पहली दफ़ा आपने देखा है कि इस दफ़ा हमने जो सोशल प्रोटेक्शन एक्ट पास करके 10 अरब रुपए जो मुख्तलिफ टेंडरिंग और दूसरे उनकी मदद में जो वैसे ही ज़ाया होते थे पैसे या किसी की जेबों में चले जाते थे, उनको हमने इकट्ठा करके सोशल एक्शन प्रोटेक्शन बिल पास किया, जिसमें हम बेवाओं को, यतीमों को, जो डाइवर्स ख़वातीन हैं उनको, जो 65 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं उनको, जो माजूर बच्चे हैं उनको, और जो माशरे के निगलेक्टेड पर्सन हैं उनको, ट्रांसजेंडर्स को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। रियासत अकेली अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा सकती। आप जैसे लोग रियासत के कंट्रीब्यूशन में हमारा साथ देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो तब जाके तो एक मिसाली माशरा जो है वो कायम होता है। मैं आपकी इन काविशों को और जो आपने ये बिल्डिंग खड़ी की, मैं इस पे तमाम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ इस इलाके की बासी होने की हैसियत से कि उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए, उनकी फलाह के लिए सोचा। और इसके साथ साथ मैं ये दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, आप फलें फूलें और इस तरह लोगों की खिदमत करें। नायत काबिल एहतराम, आज की इस खूबसूरत तकरीब के खूबसूरत मेहमान खुसूसी मेरे बड़े भाई दोस्त वज़ीर सेहत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, मेरी बड़ी बहन मावन खुसूसी बराए कानून मोहतरमा नबीला अयूब एडवोकेट साहिबा,
सदर महफिल नहायत काबिल एहतराम मेरे अंकल हाजी महबूब साहब, सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर जनरल हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर, मेडिकल स्टूडेंट्स मीरपुर हॉस्पिटल और न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल, चेयरमैन अल फलाह सोसाइटी यूके मेरे भाई चौधरी अयूब साहब, चेयरमैन जुल्फकार मुतियालवी साहब, चौधरी अब्दुल क़यूम साहब, मेरे चेयरमैन यूनियन कौंसिल पिंड खुर्द चौधरी इसरार खालिक साहब, साबिक़ मशीर हुकूमत चौधरी यासिर मुमताज़ साहब, बाबा मोहम्मद शरीफ साहब, चौधरी याकूब साहब, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और प्रेस के दोस्तों बिलखुसूस अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने भाई वज़ीर सेहत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर का मैं मशकूर हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने हल्का इंतखाब के अंदर मसरूफ़ थे। उन्होंने उस मसरूफियत से वक्त निकाला और आज इसर के मकाम पर तशरीफ़ लाए। उसके बाद उनकी और उनकी पूरी टीम का मैं बहसीयत मेज़बान में मेहमान में मेज़बान हूँ, बहसीयत मेज़बान इस हल्के के रहने वाले की हैसियत से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी पूरी टीम ने जो अल फलाह सोसाइटी के साथ MOU साइन किया आज से 8-10 दिन पहले, और जो आपकी टीम ने एक सपोर्ट दी हमारे लोगों को, मैं इस पे भी आपका मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी अयूब साहब, आपने और आपकी टीम ने मुझे हुक्म किया परसों कि आपने आना था। मैंने मुजफ्फराबाद जाना था जनाब वज़ीर आज़म के साथ, प्लस मेरी अपनी मीटिंग थी महकमे के 3 बजे। तो आपसे कमिटमेंट की थी क़यूम साहब से, जुल्फ़कार साहब से, और बिलखुसूस मेरे चेयरमैन साहब नज़र कमज़ोर आते हैं, पिंड खुर्द के भरे बड़े ताकतवर। इनकी रात को मुझे कॉल आई अगर आप कल इधर ना पहुंचे तो फिर मेरी तरफ से छुट्टी है आपकी, तो मुझे आना पड़ा। आपने ये जो काम किया है अल फलाह सोसाइटी ने, चाहे वो हेल्थ के अंदर हो, तालीम के अंदर हो, बस कर दिया थोड़ा बात आप सर अंजाम दे रहे। आपकी खिदमत किसी से डटी छुपी नहीं है। आप लोग बरतानिया के अंदर रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे, मैं खुद भी इंग्लैंड के अंदर रहता रहा, बड़ा मुश्किल होता है। लोग 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, 24-24 घंटे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और उधर रहने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद आपका जो प्यार है, अपनी इस मिट्टी के साथ जो प्यार है, इसका कोई नामल बदल नहीं है। और बड़ी मुश्किल होती है कि अपना पेट काट कर किसी दूसरे के लिए सोचना। पिछले 15-20 साल से जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इसका अजर ना मैं आपको दे सकता हूँ, ना ये हुकूमत दे सकती है आपको। इसका अजर आपको नीली छत वाला देगा, वो इसका आपको अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। वक्त की भी कमी है, गर्मी भी है, वज़ीर सेहत तफसील के साथ बात करेंगे। बरादरान मोहतरम, जिस जगह मैं खड़ा हूँ यूनियन कौंसिल पिंड खुर्द, इसके जो दाएं हाथ पर आबादी है इसर, इसमें कोई शक नहीं है, मजदूर लोग रहते हैं, मेहनतकश लोग रहते हैं, इनके लिए मुश्किल है। इसर की जो मकामी आबादी है, ज्यादातर लोग वहां से बाहर नहीं गए हुए, बाकी मोड़ा थोथाल त्याल से, पिंड से, खानाबाद से, भगौर से काफी सारे लोग बाहर गए हुए हैं। ये आपका बड़ापन है कि आप अपने इन भाइयों को नहीं भूले, इनकी हर मुश्किल वक्त में आप इनके साथ हैं, और ये इनका हक बनता था। जो आपने यहाँ पर बिल्डिंग तामीर की है, ये BHU, आपने एक मिसाली BHU कायम किया है यहाँ पर, और इसकी दुआ पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा मोहम्मद हबीब साहब ने की है। इंशाअल्लाह ताला ये आपका जो BHU है, ये आपकी जो सोसाइटी है, ये इंशाअल्लाह दिन ब दिन मजीद तरक्की करेगी इंशाअल्लाह ताला। आपने यहाँ पर चेयरमैन ने बात की है कि आपको गायनोकोलॉजिस्ट की पोस्ट चाहिए। मेरे भाई, ये चौकीदार खड़ा है, मजदूर खड़ा है, आप तो फिर 16 घंटे बाद सो जाते हैं, ये चौकीदार सोता नहीं है। मैंने अपने रेकरिंग बजट में पहले गायनोकोलॉजिस्ट BHU से लिए पोस्ट लिख के दी हुई है, इंशाअल्लाह ताला ये होगी।
आपका ताउन हमें चाहिए, आपका साथ हमें चाहिए। हम हुकूमत में मुझे साल हो गया है वे वज़ीर सेहत यहाँ पर बैठे हुए, ये गवाही देगा मेरा भाई, मेरी बहन यहाँ पर मौजूद है। मैंने कोशिश की है अपने वज़ीर आज़म साहब से भी, अपने वज़रा जो हमारे कोलीग है दीगर महकमा जात के वज़राए, जिस हद तक हो सकता है इस हल्का इंतखाब के अंदर और बिलखसूस इस यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द के अंदर, मेरा चेयरमैन यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरे काउंसलर बैठे हुए हैं, मैंने कोशिश की है पिंड खुर्द के अंदर जो मसाइल है वो आपके हल करूं। मैं कोई वोट की बुनियाद पर आपके काम नहीं कर रहा, ना ही मैं वोट की बुनियाद पर आपके काम करूंगा ताकि मैं आइंदा आऊंगा आप मुझे वोट देंगे। वोट आपका जहां पर दिल करता है आप दें। आपने मुझे 2021 के इंतखाबात के अंदर मेंबर असेंबली मुंतखब किया, आपकी मेहनत की वजह से यही वो लड़का जो 2021 में मुंतखब हुआ वो 2 साल बाद हुकूमत में आ गया है। ये आप लोगों की मेहनत थी। मैं एक सियासी वर्कर का बेटा हूं, एक चौकीदार का बेटा हूं, और चौकीदार का बेटा चौकीदारी करना बेहतर जानता है। इंशाअल्लाह ताला आपके जो यूनियन काउंसिल के मसाइल है वो आपकी दहलीज पर इंशाअल्लाह ताला हल होंगे, बेफिक्र रहे। आपके पानी का मसला था इसर वाला, 8-10 साल से आपके पानी का मसला था इसर जामिया मस्जिद के पास जो बोर था, वो क्या आपका हल हुआ नहीं हुआ? आपका ये BHU वाला मुतिवाली साहब और अयूब साहब ने कर दिया है। आपके महकमा तालीम के अंदर स्कूल्स की पोस्टों का मसला था, 141 पोस्ट आपकी एडवर्टाइज हो गई है, NTS के जरिए बच्चियां और बच्चे भर्ती होंगे। अब ये आपका काम बनता नौजवानों का, मेरी बहनों मेरी बेटियों का, कि आप टेस्ट इंटरव्यू के अंदर शामिल हूं। मेरी कोशिश है कि महकमा तालीम के अंदर और महकमा सेहत के अंदर जिस कदर मेरिट के साथ काम हो सके हमें मेरिट के साथ काम करना चाहिए। इस खित्ते चकसवारी की सबसे बड़ी डिमांड है, जो जरूरत है इस चकसवारी की, पलाक से लेकर कनेल तक, कनेल से लेकर ऊपर सार बुर्जुन तक, जो सबसे बड़ी आपकी डिमांड है वो आपकी डिमांड है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल। ये है आपकी डिमांड, ये नहीं डिमांड? हाथ खड़े करके बताए। वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत दोनों बैठे हुए हैं, ये ना ये कहें कि कासिम मजीद वैसे फाइल पकड़ के आता है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से बात की थी, उन्होंने वादा किया हुआ है कि इस बजट के अंदर जो रेकरिंग का बजट है हम तालीम और हेल्थ में दे रहे हैं, मैंने उनसे सारा बजट आपके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के लिए मांगा हुआ है। अगर मुझे हुकूमत इस बजट के अंदर रेकरिंग दे देती है तो मैं आप 12 करोड़ रुपया मेरे मंगला डैम से मंजूर करवा के रखा हुआ है बिल्डिंग के लिए, आपको इंशाअल्लाह ताला रियासत का खूबसूरत तरीन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बना के दूंगा।